Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy, healthy, and in a cheerful mood, ready for your English class. Students, today I'm going to continue with Unit 13, Degrees of Comparison. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 56. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 56, Unit 13, Degrees of Comparison. Students, in my last class, I had explained that we use adjectives to compare persons, animals or things. And we use degrees of comparison when we compare one person or thing with another. हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं बेटा कंपेयर करने के लिए, ठीक है. एंड वी यूज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टू कंपेयर वन पर्सन और थिंग विथ अनदर. एंड देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री. स्टूडेंट्स, वी यूज पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री हम बेटा जब यूज करते हैं जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी बताते हैं. एंड पॉजिटिव डिग्री के पहले बेटा ऑलवेज ए, एन, एज, वेरी ये वर्ड्स आते हैं. एंड द सेकेंड डिग्री इज कंपैरेटिव डिग्री. वी यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी वांट टू कंपेयर 2 पर्सन्स, 2 एनिमल्स और थिंग्स. बेटा जब हम किसी भी 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. कंपैरेटिव डिग्री के बेटा हमेशा बाद में देन आता है. देन स्टूडेंट्स, द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री. दिस इज द ग्रेटेस्ट डिग्री. एंड व्हेन वी यूज दिस डिग्री स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो वेयर देयर इज अ कंपैरिजन among more than 2 things. जब बेटा 2 लोगों से ज्यादा में कंपैरिजन हो, it can be more than 2 persons, it can be more than 2 things, it can be more than 2 animals. तो जब 2 से ज्यादा में कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री बेटा यूज करते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द वर्ड द. सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले बेटा द आता है. And in my last video, students, I had explained about the positive degree and the comparative degree. Now, once again, students, I'll explain the positive, comparative, and then I'll explain the superlative degree. Students, there are 3 degrees of comparison. There are 3 degrees of comparison, students. The first is positive degree. We use this when there is no comparison. And बेटा पॉजिटिव डिग्री के हमेशा पहले आप ये याद रखिएगा, ए आता है, एन आता है, ठीक है, या वेरी आता है, और जैसे जो सिमिलीज होते हैं एज डैश डैश, एज ग्रीन एज, एज हार्ड एज, ये सब पॉजिटिव डिग्री के पहले आता है. और इसको कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. द सेकेंड इज comparative degree. Students, comparative degree कब यूज करते हैं? When there is a comparison between 2 persons, 2 animals or 2 things. And remember students, it is always followed by then. Followed by then. कंपैरेटिव डिग्री के हमेशा बाद में बेटा कौन सा वर्ड आएगा? देन. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन.
I guess. By then. Comparative degree is always followed by then. Then the third is superlative degree. Beta, this is the greatest degree. And we use this when there is a comparison more than two persons, when there is a comparison in more than two persons, two things or two animals. And in this, students, the comes before it. The comes before. इसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले बेटा कौन सा वर्ड आएगा? द. ये आपको याद रखना है. These are the 3 degrees and the tip is पॉजिटिव डिग्री के पहले या तो ए आएगा, एन आएगा, वेरी आएगा, या कोई कंपैरिजन जैसे एज वाइट एज मिल्क, एज सॉफ्ट एज कॉटन. दो चीजों में इक्वल समझा जा रहा है. दो चीजों को किसी से मतलब दोनों इक्वल है तो वहां पे ये एज आएगा आगे पीछे. ये आप याद रखना. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, two animals or two things, and it is always followed by then. Then the superlative degree is the greatest of all the degrees, and remember the always comes before the superlative degree. Now students, certain rules are there when we change the positive degree into comparative and superlative. That I'll be explaining later on, but first of all I'll be explaining the superlative degree with examples. Students, now I'll explain the superlative degree with examples. The superlative degree. Always remember superlative degree के पहले बेटा क्या आएगा? The word the. The जरूर आएगा. The is always preceded by the superlative degree. Now the first example. He is the tallest boy in my class. Now students, look at the example carefully. He is the tallest boy in the class. In this, students, there is comparison in more than two persons. Now in a class there are many boys and we are talking about one particular boy who is the tallest among all the boys. तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में बेटा कंपैरिजन जब दो से ज्यादा लोगों में होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री जनरली कैसे फॉर्म होती है? बाय एडिंग EST. बेटा इसके लास्ट में EST, पॉजिटिव डिग्री में ST या EST ऐड करते हैं. एंड कीप इन माइंड कि इसके पहले हमेशा क्या आता है बेटा? द वर्ड द. सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले कौन सा वर्ड आएगा बेटा? द. एंड जनरली सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से फॉर्म किया जाता है बाय एडिंग ST और EST एट द एंड. बट अगर कोई बड़ी स्पेलिंग वाला वर्ड है जिसमें मोर देन 2 syllables हो, जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल, चीयरफुल, ऐसे बड़ी स्पेलिंग वाला वर्ड है जिसमें 2 syllables से ज्यादा हो, तो उनके आगे आप क्या लगाते हो बेटा? मोस्ट. पॉजिटिव डिग्री के आगे क्या लगाते हो? मोस्ट, टू चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री. एंड आई एक्सप्लेन. आपको सिलेबल्स कोई भी वर्ड में पता करना है तो क्या करना है? यू हैव टू स्पीक लाउडली कीपिंग योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर माउथ.
आपके मुंह के सामने अपना पाम रखें, कीप योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड स्पीक द वर्ड लाउडली। एंड आपके हाथ में जब वर्ड बोलते जितनी बार आपको हॉट पफ ऑफ एयर फील करोगे, दैट मीन्स यू हैव गॉट दैट मेनी सिलेबल्स इन दैट वर्ड। जितनी बार आपको गर्म हवा अपने हाथ पे लगेगी वर्ड बोलते हुए, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड्स। एंड मोर देन 2 सिलेबल्स वाले अगर वर्ड हो और उनको अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है तो उसके आगे आप क्या यूज करोगे? मोस्ट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज मिस्टर अंबानी is the wealthiest. Wealthiest means the person who's got lot of money, जो सबसे ज्यादा रिच हो। wealthiest person in India. Now we are talking about Mr. Ambani, है ना? And Mr. Ambani is the wealthiest person in India. इनको किससे कंपेयर किया? इंडिया के जितने भी पर्सन्स हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है, मोर देन 2। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? वेल्थीएस्ट। और इसके लास्ट में क्या लगा है? IEST एंड इट इज प्रिसीडेड बाय द वर्ड द। वेल्थीएस्ट के पहले क्या है बेटा? द। सो ये सुपरलेटिव डिग्री में ऑलवेज रिमेंबर द हमेशा पहले आता है। एंड सुपरलेटिव डिग्री वेल्दी पॉजिटिव डिग्री से क्या बना है? द वर्ड वेल्दीएस्ट। एंड हाउ वी फॉर्म, नाउ विल बी लर्निंग। आफ्टर दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रूल्स। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज दिस इज द oldest temple in the city. Now we are talking about a particular temple, and that particular temple is the oldest among all the temples of the city. So oldest is the superlative degree and it is preceded by the word the. oldest से पहले क्या है? आप देखो सारे एग्जाम्पल्स में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है बेटा? द वर्ड द। इट ऑलवेज कम्स बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज द मोस्ट इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव जिसने आपके ऊपर बहुत इम्प्रेशन छोड़ा हो, दैट इज इम्प्रेसिव। मोस्ट इम्प्रेसिव स्टोरी आई हैव एवर read. Now, the word impressive has got more than 2 syllables. Big spelling है, more than 2 syllables है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया गया है? most to convert this into superlative degree. Impressive positive degree है, and when you pronounce this word, it has got more than 2 syllables. Impressive. आप या तो ब्रेक करके भी पता कर सकते हैं। impressive, हाँ, more than 2 syllables है, तो क्या लग जाएगा इसके आगे बेटा? most. So, आज इसके बिफोर कौन सा वर्ड आया है बेटा? the. तो ये सुपरलेटिव डिग्री। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये ग्रेटेस्ट डिग्री होती है। कोई भी जब कंपैरिजन हो रहा है तो जो सबसे ज्यादा हो तो वो आपकी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। एंड रिमेंबर सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले कौन सा वर्ड आता है बेटा? द। फाइन। नाउ आई होप स्टूडेंट्स द 3 degrees are clear to you. Now we'll read about the rules कि how to form the comparative and superlative degree from the positive degree. So once again I'll revise students. There are 3 degrees: the positive degree, the comparative degree and the
सुपरलेटिव डिग्री। बेटा पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब कोई भी दो चीजों को हम इक्वल समझते हैं तो उसके लिए भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, या तो नो कंपैरिजन वाला केस हो या दो चीजों को इक्वल समझ रहा है। देन सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री। उसको कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन्स। जब दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो तो उसमें आप कौन सा यूज करोगे? कंपैरेटिव। एंड रिमेंबर कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा बेटा क्या आता है? देन। एंड द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द ग्रेटेस्ट डिग्री। एंड उसके पहले क्या आता है? द। एंड नाउ वील लर्न अबाउट द रूल्स हाउ टू form comparative and superlative degree from the positive degree. Now students, all of you please turn to page number 57. The first rule is most adjectives form their comparative and superlative degree by adding ER and EST. This you need to remember कि most जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग ER और EST. Now let's look at this. Positive, comparative. This is rule number first. This is the first rule. And superlative. These are the three. Now the students, the first word is bold. Now, bold is the positive degree. This is the adjective. Now we have to form the comparative and superlative degree of bold. So as said, we will add ER to form the comparative degree. Comparative degree में बेटा हमको क्या लास्ट में ऐड करना है? ER. और superlative degree में हमको लास्ट में क्या ऐड करना है? EST. मैक्सिमम बेटा मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं. सो बोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? फर्स्ट वील राइट बोल्ड एंड देन वील ऐड ER. सो बोल्ड, बोल्डर. बोल्ड is the positive degree. We'll use it when there is no comparison or when two things or two persons are considered equal. And bolder, the comparative degree, when we'll use when there is a comparison between two persons or things. और आपने देखा बोल्ड की स्पेलिंग में हमने क्या ऐड किया बेटा? ER. हमने लास्ट में क्या ऐड किया? ER. नाउ सुपरलेटिव डिग्री इफ यू वांट टू फॉर्म, हम लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? EST. So bold, bolder, boldest. Bold, bolder, boldest. How did we form the comparative and superlative degree? We form them by adding ER at the last and by adding EST at the last.
Now, the next word is small. Now, अब small की comparative degree क्या होगी? तो बेटा small की comparative degree क्या होगी? Small. We will add er at the end to form the comparative degree of small, that is smaller. हमने last में क्या add किया? er. Can you see how do we form the comparative degree of most of the adjective? By adding er at the end of the word. Now, we want to form the superlative degree of the adjective small. So, what we'll do? We'll add est at the end. So, students, small, smaller, smallest. Small, smaller, smallest. Small, smaller, smallest. You just have to keep in mind that आपको word में last में er या est add करना है to form the comparative and the superlative degree. Comparative में last में क्या add करेंगे? er and superlative में est. Then students, the third word, the positive degree is not given. The comparative degree is given. Now we need to write the positive degree and the superlative degree. अगर positive दिया है तब तो आप आराम से comparative और superlative लिख लोगे by adding er and est. But अगर comparative दिया है और आपको उसकी positive and superlative degree, then what will you do? You have to remove the er to write the positive degree. So अगर बेटा हम kind में er if we remove क्या हो जाएगा? Kind. तो kind will be the positive degree. er लगाया तो comparative degree हो गई kinder. And how will we form the superlative degree of the adjective kind? By adding est. So kindness, kind, kind, we'll add est. er remove कर दोगे तो positive degree और er remove करके est add कर दोगे तो superlative degree. So this you should keep in mind that most of the adjectives, they form their comparative and superlative degree by adding er or est at the end of the adjective. Comparative के लास्ट में हम क्या लगाते हैं बेटा? er and superlative के लास्ट में क्या लगाते हैं? est. You need to keep this in mind. Now the fourth word. The fourth word has the superlative degree, and now you need to write the comparative and the positive degree. Word है आपका darkest. Darkest दिया है. अब darkest की comparative degree क्या हो जाएगी? est. Remove करके हम er लगा देंगे तो हो जाएगा darker. est remove करके हमने क्या ऐड किया बेटा? er. तो क्या हो गया? darker. और er और est दोनों remove कर देंगे तो word हो जाएगा dark. That is the positive degree. Positive degree dark है, er उसमें ऐड किया, darker हो गया. What it is? Comparative degree. उसमें हमने est ऐड किया तो क्या हो गया? Superlative degree. तो आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग्स में कि मोस्ट ऑफ दी एडजेक्टिव्स उनके लास्ट में er लग के कंपैरेटिव डिग्री बनती है एंड est लग के बेटा सुपरलेटिव डिग्री बनती है. देन द फिफ्थ वर्ड पॉजिटिव ब्लैंक है एंड सुपरलेटिव इज ब्लैंक एंड द कंपैरेटिव डिग्री इज गिवन, दैट इज क्लेवरर. नाउ you have got er at the end. So first of all we write the positive degree by removing the er. Now if we remove the er from the cleverer word, क्या हो जाएगा? Clever. So clever is the positive degree and the superlative degree is cleverest. Clever spelling में last में आपने क्या add करना है बेटा? est. So clever, cleverer, cleverest. Now, what is rule number 1, children? That most of the adjectives, they form their comparative degree and superlative degree by adding
er or est at the end of the word. We have seen 5 words which we have formed the comparative and superlative by adding er and est. The first one was bold. Bold, हमने लास्ट में er लगाया तो क्या हो गया? बोल्डर. लास्ट में est लगाया तो बोल्डेस्ट. बोल्डर comparative degree, boldest superlative degree. Then the second word was small. Small के लास्ट में आपने क्या लगाया? er. तो smaller is the comparative degree and small के लास्ट में if you add est ये क्या हो जाएगा? Superlative degree. Then the third word is kind. Kind positive degree है. उसको comparative में आपको अगर चेंज करना है तो आप लास्ट में क्या लगाओगे बेटा? er. एंड अगर आपको उसको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो आप क्या यूज करोगे उसमें? est. देन द फोर्थ पॉजिटिव डिग्री इज डार्क. डार्क में आपने लास्ट में क्या लगाया? er. तो डार्कर हो गया. दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री. एंड सुपरलेटिव में लास्ट में आपने क्या लगाया? est. तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज क्लेवर. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. अब कोई भी डिग्री अगर पूछते हैं और आपको अगर स्पेलिंग पता है तो आप आराम से उसको सुपरलेटिव, कंपैरेटिव कोई भी एक डिग्री है तो आप बाकी 2 डिग्री स्पेलिंग से आराम से लिख सकते हो. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर 3 डिग्रीज एंड पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं बेटा? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. हमें बस किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है. एंड पॉजिटिव डिग्रीज के पहले ए, एन, वेरी, हाँ ये सब वर्ड्स आते हैं. जैसे शी इज अ स्मार्ट गर्ल. स्मार्ट के पहले ए आया तो इंडिकेट कर रहा है कि आप उस गर्ल के बारे में बस उसकी क्वालिटी बता रहे हो, कोई कंपैरिजन नहीं है. ठीक है. आप पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हो? जब आप किसी 2 चीजों को इक्वल बताते हो. शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर. तो उसको किसको कंपेयर किया? फ्लावर से कंपेयर किया. दोनों को इक्वल बताया, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे. एंड जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये कब आप यूज करते हो? जब आपको किसी 2 चीजों में कंपैरिजन करना है. एक को ज्यादा बताना है, एक को कम बताना है. और आप हमेशा याद रखोगे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन सा वर्ड आता है बेटा? देन. इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. कोई भी सेंटेंस होगा तो बोल्डर देन, स्मॉलर देन सेंटेंस में, काइंडर देन, डार्कर देन, क्लेवरर देन. कोई भी सेंटेंस किसी भी 2 चीजों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द टॉर्टस वॉज क्लेवरर देन द रैबिट. टॉर्टस और रैबिट 2 एनिमल्स में कंपैरिजन किया मैंने तो क्लेवरर वर्ड यूज किया और बाद में क्या यूज किया बेटा? देन. सो ऑलवेज रिमेंबर कि कंपैरेटिव डिग्री के हमेशा बाद में क्या आता है बेटा? देन. ये आपको याद रखना है. फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. यू नीड टू फिल विथ द करेक्ट डिग्री. बट अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देन है तो आपको तुरंत इट शुड क्लिक कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है इसमें, क्योंकि देन है तो इट शुड इमीडिएटली क्लिक यू. सो ऑलवेज रिमेंबर कि कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स वी यूज कंपैरेटिव डिग्री एंड इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. Then the third degree is superlative degree. ये बेटा ग्रेटेस्ट ऑफ डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री होती है. एंड आपको याद रखना है कि इसके पहले हमेशा द आएगा. द बोल्डेस्ट, द स्मॉलेस्ट. जब सेंटेंस में होगा तो इसके हमेशा पहले बेटा क्या आएगा? द. द बोल्डेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द काइंड. शी इज द काइंडेस्ट पर्सन, है ना. मदर टेरेसा वॉज द काइंडेस्ट पर्सन. हमने काइंडेस्ट के पहले क्या लगाया? द. इट वॉज द डार्केस्ट नाइट. डार्केस्ट के पहले क्या लगाया? द, है ना. सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट सुपरलेटिव डिग्री इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डिग्रीज एंड इसके पहले हमेशा बेटा द आता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप that the first rule is clear to you, that most of the adjectives we form their comparative and superlative
by adding ER and EST to the words. ER लगा दिया तो comparative, EST लगा दिया तो superlative. So students, for today, that's all. Thank you students. Have a good day ahead.